Okay, so we have seen that there are 6 trigonometric ratios. What these ratios indicate? This ratio represents the relation between the sides and the angles of a particular right angled triangle. Okay, this is what we have understood. Now, coming to the concept that we have discussed, for example, I assume that this is a right angled triangle, let us say ABC. ABC is a right angled triangle. Okay, this is the perpendicular, this is a right angled triangle ABC. Now, if I extend this AB till, let us say, a point D, this is a point D, okay, and I drop a perpendicular from this point D like this, and this is also a perpendicular, let us say this is E. Similarly, I again extended this point D till the point E, and again I dropped a perpendicular like this, and this is, let us say, this is not point E, let us say this is F, and this is G. So what I did is, from the same angle A, by two arms of these this angle A, what I did is I made 3 triangles. Which 3 triangles? You can see triangle ABC, triangle ABE, and triangle AFG. These are the 3 triangles that I made using the same angle, okay, using the 2 arms of this angle A. Now, क्या ऐसा करने से एंगल A का वैल्यू चेंज हो गया? नहीं, ऐसा करने से एंगल A का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, एंगल A के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा. लेट अस से ये एंगल A 60 डिग्री का है, तो ये एंगल 60 डिग्री का ही रहा. ओके, इफ आई कंसिडर ट्राइंगल ABC, okay, just observe the triangle ABC. In triangle ABC, I can see for this angle A, with respect to this angle A, this BC represents the perpendicular. Okay, why BC is perpendicular? Because जैसा मैंने कहा था, opposite side को हम perpendicular कहते हैं. तो उसी तरह से अगर मैं ABC triangle को observe कर रहा हूँ, so इस triangle में मैं कहूँगा BC is the perpendicular. Okay, AC is what? AC is the base, and AB is what? AB is the hypotenuse in triangle ABC. Okay, so with respect to angle A, so let us write this condition. For triangle ABC, BC is perpendicular with respect to angle A. Okay, AB, what is AB? This is AB. AB is the hypotenuse. AB is hypotenuse with respect to angle A. Okay, and similarly this AC, what does this AC represents? AC represents the base. AC is the base with respect to angle A. AC is basically the base with respect to angle A. This is what we can conclude. Now, if I apply the trigonometric ratios, for example sine, if I apply the sine ratio, now what is sine ratio? How we write the sine ratio? If I want to take the sine of this angle A, I will write it as sine angle A, or I can write it as sine A. So sine A and sine of angle A both are same. यह दोनों वैल्यू सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं. ओके, सो लेट अस राइट इट एज साइन ऑफ एंगल A. It means I am operating this sine on angle A. Now, if I operate sine on angle A, then what does this sine give? What does this sine trigonometric ratio give? It gives the ratio of perpendicular and the hypotenuse. So I will write that sine A is equals to perpendicular with respect to angle A. Okay, because this is the opposite side BC, we will call this as perpendicular.
सो साइन ऑफ ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मतलब ए एंगल के ए के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है हम उसकी बात कर रहे हैं. दैट मीन्स इट इज BC अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज AB. ट्रायंगल की हाइपोटेनियस एक सेम एक कांस्टेंट चीज है, हाइपोटेनियस नहीं बदलेगी, सिर्फ क्या होगा एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस के वैल्यूज बदल जाएंगे. फॉर एग्जांपल एंगल A के लिए जो ये BC एक परपेंडिकुलर है, वहीं अगर मैं एंगल B को देखता हूं तो एंगल B के लिए ये BC एक बेस की तरह ट्रीट होगा. ओके, नाउ साइन ऑफ एंगल A इज BC अपॉन AB हो जाएगा. साइन ऑफ एंगल A क्या है? BC अपॉन AB, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. नाउ जैसा हमने ट्रायंगल ABC को कंसिडर किया, लेट अस कंसिडर द सेकेंड ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल ADE. In the similar manner, consider the triangle ADE. ADE. This is the triangle ADE. Now just observe in triangle ADE what you can see. ADE is also a right angled triangle, and in this triangle, for this angle A, I will say DE represents the perpendicular. So DE is perpendicular with respect to angle A in triangle ADE, and I will say this AE. This AE is base with respect to again angle A. With respect to angle A, AE represents the base. Similarly, what is AD? AD is the hypotenuse. So I will say AD is hypotenuse with respect to angle A. Okay, with respect to angle A, because angle A lies in triangle ABC as well as in triangle ADE as well as in triangle AFG. So observe the triangle ADE. In ADE triangle, again I can calculate the sine of A. Again I can calculate the sine of A. Sine of A in triangle ADE means perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is DE upon hypotenuse is AD. Okay, hypotenuse is AD. Similarly, observe the third triangle, triangle AFG. In triangle AFG, you can see this is AFG, this is the triangle. In this triangle, FG represents the perpendicular, AG represents the base, and AF represents the hypotenuse. So FG is perpendicular with respect to angle A, then this is AG is base with respect to angle A, and this is AF is hypotenuse with respect to angle A. Okay. This is what I can see. Here also I can see that I can calculate the sine of this angle A. Now in this case, if I calculate the sine of angle A, what is the value of sine of angle A? You can see sine of angle A means perpendicular upon hypotenuse. So it is FG upon AF. This is the perpendicular upon hypotenuse. So I call this as the first equation, I call this as the second equation, I call this as the third equation. Okay. Now observe the three triangles, triangle ABC, ADE and AFG. In all these three triangles, I can say this angle A is common and this angles are 90 degrees. So I will say triangle ABC is similar to triangle ADE is similar to triangle AFG. Why? By angle similarity or angle corollary. Okay, by angle corollary I can say all these three triangles are similar. क्यों? क्योंकि एंगल ए सभी में लाई कर रहा है और ये सभी एंगल्स, इन सभी ट्राइंगल्स के एक एक एंगल 90 डिग्री हैं. तो जब दो एंगल्स किन्हीं ट्राइंगल्स में सेम है तो हम कहेंगे डेफिनेटली तीसरा एंगल भी सेम होगा. ओके, सो अगर ऐसा है, इफ द सिचुएशन इज लाइक दिस,
then what I can do, I can calculate, I can say that since the three triangles are similar, or consider just two triangles. Since the two triangles are similar, then their corresponding sides are proportional. If the two triangles are similar, then corresponding sides are proportional. And what are the corresponding sides of ADC, this ABC and ADE? The corresponding sides are, I can write that AB upon AD is equals to BC upon DE. Okay, I can write BC upon DE. AB upon AD is equals to BC upon DE. Okay, this is what I can write. So this is what I can write. Now what I am going to do is, I am going to shift this AD here and this AB here. What I am going to do is, I am going to shift this AD here and AB here, just a cross multiplication. So this will give you DE upon AD is equals to BC upon AB. Okay, DE upon AD is equals to BC upon DE, BC upon AB. So what I can see, what is DE upon AD? DE upon AD is basically sine of angle A. DE upon AD क्या है? Sine of angle A in triangle ADE. Okay, or what is BC upon AB? BC upon AB is sine of angle A in triangle ABC. तो हमने ट्रायंगल ABC में साइन ऑफ एंगल A निकाला और ट्रायंगल ADE में साइन ऑफ एंगल A निकाला, और हमने ये देखा कि ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल बराबर हैं, ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल बराबर हैं. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, हम यहां से ये कंक्लूजन निकालेंगे कि ट्रायंगल में साइड्स का लेंथ कुछ भी हो, साइड्स का लेंथ कुछ भी हो मैटर नहीं करता. अगर एंगल एक पर्टिकुलर एंगल है, जैसे कि यहां पर एंगल A चेंज नहीं हो रहा, अगर एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा सेम ही होगा. ओके, व्हाट आई कैन से इज द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो do not depend on the length. क्या कहेंगे हम? The value of trigonometric ratio do not depend on the length of sides of triangle. Okay? Rather it depends on angle. Okay, rather it depends on angle. Why? Because हम देख सकते हैं अगर ये एंगल कांस्टेंट है तो ये DE अपॉन AD, BC अपॉन AB सब बराबर दिख रहे हैं. इसी तरह से ये वाला FG अपॉन AF भी बिल्कुल बराबर दिखेगा. लेकिन अगर ये एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज होने से सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे और हम कहेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज हो गया. तो अल्टीमेटली एंगल A पे खड़े होके जब मैं BC अपॉन AB का रेशियो निकालता हूं, या फिर DE अपॉन AD का रेशियो निकालता हूं, या फिर FG अपॉन AF का रेशियो निकालता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इससे कोई मतलब नहीं कि ट्रायंगल के साइड्स का लेंथ क्या है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे. ओके, जब आप इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, इट डू नॉट मैटर कि आप बड़े ट्रायंगल में यूज कर रहे हैं या फिर छोटे ट्रायंगल में यूज कर रहे हैं. दैट्स व्हाई आई कैन से ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है, दैट इज टू मेजर द हाइट ऑफ ह्यूज ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट की हाइट को नापने के लिए क्या किसी ने माउंट एवरेस्ट के पीक पर से एक टेप नीचे डालकर लेंथ नापी थी? ऑब्वियसली नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो फिर क्या करा गया था? फिर उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट की मदद से ही, ओके, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट की मदद से इस माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर किया था.
हम उसे सीखते हैं, हम उसे देखते हैं कि एक्चुअल में उन्होंने क्या मेथड अप्लाई किया था. ओके, आई विल टेल यू दैट मेथड. सो फर्स्ट यू नोट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. यहां से हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है, किसी भी तरह से किसी भी केस में साइड्स के लेंथ पर डिपेंड नहीं करता. ओके, सो एक खास बात ये होती है कि हमें फॉर एग्जाम्पल साइन है, साइन ऑफ सम एंगल निकालना है, जैसे साइन ऑफ थीटा. यू हैव स्टडीड अबाउट थीटा एंगल. वी जनरली रिप्रेजेंट द angle, we generally represent an unknown angle by theta. So I will say sin theta. Sin theta means sin of theta. Theta is what? Theta is just like an angle A. Okay. So from now what I will do is I will use sin theta instead of sin of angle A. अगर मैं कहता हूं कि इस एंगल का मेजर है लेट अस से थीटा, तो मैं कहूंगा दिस इज sin थीटा. तो sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AC. ओके, इसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AB. इसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी DE अपॉन AD इज इक्वल्स टू FG अपॉन AF. हम कहेंगे दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. ओके, और आप देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होती है. हम देख रहे हैं कि AC के दिस AE का लेंथ AC से ज्यादा है, लेकिन फिर भी ओके, भले ही BC का लेंथ DE से कम है, लेकिन फिर भी साइन थीटा सभी में सेम आ रहा है. इसी तरह से आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लीजिए, वह हमेशा सेम ही आएगा. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सिर्फ एंगल पे डिपेंड करती है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. ओके, इसे बड़े ध्यान से याद रखिएगा. सो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं एक मेथड आपको बताता हूं कि एक्चुअल में माउंट एवरेस्ट की अगर हाइट नापी थी तो कैसे नापी गई थी. ओके, सो फर्स्ट यू नोट दिस. ओके, सो हमने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कभी भी साइड्स की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वह सिर्फ डिपेंड करता है एंगल पे. तो इसका मतलब अगर एक बड़ा ट्रायंगल है और उसमें कोई एक एंगल है और छोटा ट्रायंगल है और उसमें भी सेम एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बिल्कुल सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया इस तरह से, वेयर दिस एंगल इज लेट अस से थीटा. दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. इस थीटा के रिस्पेक्ट में मैं कहता हूं कि ये जो सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर है, ये जो नीचे वाली साइड है ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है. ओके, एंड दिस इज हाइपोटेनियस. सो लेट अस अज्यूम कि परपेंडिकुलर इज टू बेस, और लेट अस से साइन थीटा की वैल्यू इस केस में हम मानते हैं लेट अस से साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेट अस से इट इज 1/3. ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया कि साइन थीटा कोई एंगल है, उस पर मैंने साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑपरेट करा, तो साइन ऑफ एंगल थीटा को मैं मान लेता हूं लेट अस से ये 1/3 आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो ये 1/3 क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 1:3 के रेशियो में है. अब 1:3 के रेशियो में है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि अगर परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनियस 3 सेंटीमीटर होगा. अगर परपेंडिकुलर इज 2 सेंटीमीटर देन हाइपोटेनियस इज 6 सेंटीमीटर. इफ परपेंडिकुलर इज 10 सेंटीमीटर देन हाइपोटेनियस विल बिकम 30 centimeters. So ultimately this particular value, this 1/3 gives the ratio between the two sides. Please remember, I am telling it again, ये हमें सिर्फ रेशियो बता रहा है, ये हमें एक्चुअल लेंथ नहीं बता रहा. मुझे नहीं पता कि परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, मुझे नहीं पता कि हाइपोटेनियस का लेंथ कितना है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में 1:3 का रेशियो है. ओके, सो अगर ये रेशियो बता रहा है, सो इफ आई मेक अ बिगर ट्रायंगल, अगर मैं इसी थीटा एंगल के साथ एक बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, फॉर एग्जाम्पल कुछ इतना बड़ा, ओके,
एक बड़ा ट्राइंगल, इससे और बड़ा करते हैं। लेट अस से लाइक दिस, एक बहुत बड़ा ट्राइंगल, दिस इज थीटा। अगर यहां पर भी ये थीटा है एंड साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, इट इज 1/3। अभी हमने देखा 1/3। In this triangle also what will going to happen is that this is the perpendicular, this is the hypotenuse. In this case also the perpendicular and hypotenuse will remain in the ratio of 1:3। मतलब मैं ट्राइंगल का साइज छोटा कर दूं या ट्राइंगल का साइज बड़ा कर दूं, अगर ये थीटा सेम है, दोनों ट्राइंगल्स में थीटा सेम है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमेशा सेम होगा। या कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लीजिए, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होंगे। वेदर यहां पर मैं cos थीटा ले लूं तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। ओके, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड। ओके, जो हमने पढ़ा उसके बारे में एक छोटा सा कंक्लूजन हमने निकाल लिया। नाउ अब कुछ बेसिक कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द थीटा, बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कुछ सिंपल कंक्लूजन्स निकालते हैं। देखिए, इन दिस ट्रायंगल यू कैन ऑब्जर्व दिस इज थीटा, सो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस। सो अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा, साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन थीटा, टैन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, टैन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सिंपल सा एक लॉजिक है। अब मुझे ये तीनों वैल्यूज याद रखनी है, साइन की, कॉस की और टैन की। साइन ऑफ एनी एंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू दैट एंगल एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड द हाइपोटेनियस। cos of any angle is equals to base upon hypotenuse। base मतलब उस पर्टिकुलर एंगल के लिए बेस। ओके, उस पर्टिकुलर एंगल के लिए जो बेस होगा उसे हम बेस कंसिडर करेंगे अपॉन हाइपोटेनियस। एंड tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू दैट एंगल, विथ रिस्पेक्ट टू दिस थीटा। ओके, एंड बेस अगेन विथ रिस्पेक्ट टू दिस थीटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इसे याद कैसे रखें हम, इसे हम याद रख सकते हैं एक सिंपल से लॉजिक से, P H, this P B P and this is H H B. Okay, when I was in school my teacher taught me how to learn, how to remember this simple sin theta, cos theta and tan theta, and that is by this PBP HHB. PBP means Pandit Badri Prasad and HHB means Har Har Bole. So Pandit Badri Prasad Har Har Bole, like this you can remember this. In this is what, this is sin theta, this is cos theta and this is tan theta. बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। आप भी इसी तरह से सिंपल सा लॉजिक है, इसे याद रख सकते हैं। सो PBP HHB। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस, यू कैन रिमेंबर ऑल दीज थ्री वैल्यूज। नाउ अब अगर मुझे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा तीन तो मिल गए, लेकिन अभी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बचे हैं। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से, कोसिकेंट दैट इज कोसेक, then secant that is sec, और cotangent that is tan, cot. Okay, this is tangent, this is cosine, this is sine. So हमारे पास cosecant, secant और cot तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं। कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी सिंपल। देखिए, cosec theta is basically hypotenuse upon perpendicular, sec theta is basically base, hypotenuse upon base, and cot theta is basically base upon perpendicular. Again I am telling you, please remember this sec and this theta are not in multiplication, this cot and this theta are not in multiplication. तो ये जो भी हमने लिखे हैं,
ये जो भी वैल्यूज हमने लिखी है, साइन, कॉस, टैन, दिस इज कॉसेक, दिस इज कॉसेक, दिस इज कॉसेक, सेक और कॉट, ये सभी वैल्यूज थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये एक ऑपरेटर है। ओके, ये एक ऑपरेटर है जो कि इस थीटा के ऊपर ऑपरेट हो रही है। ऑपरेटर का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर और लेटर से मैंने लिखा a प्लस बी। अब a प्लस बी क्या है? a प्लस बी एक नंबर है, ऐड करा मैंने दो नंबर्स को, एक पॉलिनोमियल है कह सकते हैं। सो a प्लस बी एक नंबर है और अगर मैंने इस ब्रैकेट के ऊपर 2 लगा दिया तो मैं कहूंगा दिस 2 इज बेसिकली एन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर है और ये a प्लस बी के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, और ऑपरेट होने के बाद क्या देता है? हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द वर्क ऑफ ऑपरेटर। सो इन सिमिलर मैनर ये सभी भी क्या है? ऑपरेटर्स हैं। थीटा क्या है? एक एंगल है, लेकिन जैसे ही कॉसेक जोड़ दिया तो थीटा के ऊपर कॉसेक जोड़ने पे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो मिल गया। थीटा क्या है? एंगल। कोटेंजेंट जोड़ दिया तो कॉट जोड़ने पे ये बन गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटर। सो मैं ये 3 रिमेंबर कर सकता हूं इस मेथड से। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर इन तीनों को कैसे याद रखा जाए? अगर मैं इन तीनों रेशियोज को इन रेशियोज से कंपेयर करूं, ओके, अगर इन तीनों रेशियोज से कंपेयर करूं, आई कैन फाइंड अ कंक्लूजन एंड दैट कंक्लूजन इज, मैं देख सकता हूं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैं इस थीटा एंगल पे साइन ऑपरेट करता हूं तो मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो मिलेगा। ओके, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। और अगर इसी थीटा पे मैं कॉसेक ऑपरेट करता हूं तो मुझे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो मिलेगा। ओके, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर का रेशियो मिलेगा। सो आई कैन से दैट cosec theta is basically 1 upon sin theta. It's a very simple conclusion। आप देख सकते हैं ये p अपॉन h है, ये h अपॉन p है। ओके, थीटा पे cosec कोसिकेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑपरेट करने पे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो मिलता है और साइन में जस्ट उल्टा हो जाता है, तो इसीलिए हम कहेंगे cosec थीटा क्या है? 1 अपॉन sin थीटा। या फिर एक्सक्यूज मी, इसी से हम एक और कंक्लूजन निकालेंगे। अगर मैं साइन थीटा को यहां मल्टीप्लाई कर दूं, आई कैन सी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप देखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 आता है। ओके, सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हम कहेंगे कि sec थीटा इज बेसिकली 1 अपॉन cos थीटा। sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन cos थीटा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल्स टू 1। cos थीटा इंटू sec थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। ओके, नाउ tan थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं कह सकता हूं दैट cot थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। सो यहां से कंक्लूजन निकलेगा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द थर्ड कंक्लूजन। ओके, ये 3 कंक्लूजन्स। नाउ अब एक और कंक्लूजन हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकालता हूं, अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करता हूं, आई विल गेट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली ये बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। सो हम देख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। तो मैं कह सकता हूं दैट tan थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा क्या हो जाता है? इट इज बेसिकली इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो इन सिमिलर मैनर अगर मैं यहां पर cot थीटा को देखता हूं, सो अगर tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा हो रहा है, सो व्हाट इज cot थीटा? cot थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा। ओके, 1 अपॉन tan थीटा मतलब 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो ये बन जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो अल्टीमेटली हम कहेंगे cot थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये होता है cot थीटा का वैल्यू। ओके, ये है tan थीटा, ये है cot थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। इट्स वेरी सिंपल। तो दीज आर सम बेसिक कंक्लूजन्स जो हमने निकाले हैं। ओके, सो आप इसे नोट कर सकते हैं, देन वी विल कंटिन्यू।